Hi, this is Ashish Purushottam and today we will discuss Quad. So what is Quad? Quad is basically a grouping of democratic government which includes Japan, Australia, India and the United States. So let us see. First we will discuss genesis of the Quad. Friends, basically Quad was born into the crisis itself. We all know that in 2004 the Indian Pacific region was badly hit by tsunami due to continental shift into the Indonesia region. And during that time only, Australia, India, Japan, and United States came together for the relief purposes, and hence an informal grouping was born in the crisis. Now, group of democratic nations dedicated to delivering results through the practical cooperation. So it's one of a big thing of the Quad grouping that we are into the practical cooperation, and we did the coordinated rapid humanitarian assistance and disaster relief to the people in need during the tsunami crisis. And this cooperation was known Quad, and hence it was born. And we all know that during this time into post COVID era, we are also facing a new kind of the crisis. It is due to the COVID led disruption in the world. So that's why Quad become again very important. Now, how Quad evaluated? So basically, idea of Quad was first mooted by then Japanese Prime Minister Shinzo Abe. He used to be very friendly with the India itself. It's a very important a partner, strategic partner for India. But in 2007 only, but Australia pulled out due to Chinese pressure. So basically, what was the story behind it? That son of law of Kevin Rudd, the then Prime Minister of Australia, was a Chinese citizen, and he was quite influential at that time. Incidentally, the present president of the US and his son-in-law is also having great stake into this Chinese business and all the things. So it is a coincidence that we are facing now. In 2012, and hence due to pressure from the Chinese, Australia pulled off from the Quad grouping. But in 2012, Shinzo Abe again floated the concept of Asia's democratic security diamond, involving Australia, Japan, India, and the US. In order to safeguard US, in order to safeguard the ocean of the Indian Ocean from any influence, basically from the influence of the China. Now, in 2017, India, US, Australia, and Japan gave a shape to the long pending Quad coalition and developed it, to develop a new strategy to keep the critical sea routes in the Indo-Pacific free of any influence. When we talk about any influence, that essentially means China only. So one of most important aim, or one of most important strategic goal of Quad is to keep the Indo-Pacific free region free of any influence, basically of China. And in figure we can see this Indo-Pacific region itself. Now, this is the unofficial version of the Quad. What is the official vision of the Quad? Recently, a high-level meeting of the Quad representative from the Quad grouping held, and it was held that it was told that actually the official version of the Quad first mooted or floated into the open domain. And what it says that the Quad is a flexible group of like-minded partners dedicated to the advancing a common vision and to ensure peace and prosperity. So Quad is not meant to be military or any this kind of the alliance, but ये peace and prosperity के ऊपर focus करने वाला एक alliance है. Now, Quad group have a shared vision of an Indo-Pacific region that is free, open, resilient, and inclusive. These are very important words that is that was incorporated into the official state from the Quad head of the states. Also, one of important vision of Quad is Indo-Pacific is remain accessible and dynamic,
governed by the international law and bedrock principles such as freedom of navigation, peaceful resolution of the disputes, and that all countries are able to make political choice free from any coercion. सो बेसिकली मैं आपको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये क्यों इस टाइप की वर्ड चूज़ की गई, बिकॉज वी ऑल नो दैट चाइना इज डूइंग हेजोमेनिक काइंड ऑफ थिंग into the Indian Ocean as well as into South China Sea. They consider South China Sea as a den of their own home, and they claim over the South China Sea that is big into the resources like the natural resources, and the fisheries are quite rich in that region, so they try to put assertion on that. So इसके लिए काफ़ी कंट्रीज परेशान थी, इसके लिए ही ये क्वाड की ग्रुपिंग की बेसिकली फॉर्मेशन हुआ है. नाउ वी ऑल नो दैट इंडिया इज़ द सेंटर ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, एंड एक छोटा सा लिस्ट है कंट्रीज़ का जो इंडो पैसिफिक रीजन में आते हैं. इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव बट इट इज़ इंडिकेटिव ओनली. कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? फर्स्ट इट्स ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनई, कंबोडिया, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, other 2-3 countries that are incorporated into the Indo-Pacific region. अगेन मैं कह रहा हूँ कि ये सब जो है एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, बट एक इंडिकेटिव लिस्ट है. नाउ ये तो बात हो गई कि क्वाड में क्या आता है और क्वाड के अंदर क्या क्या आती हैं. व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द चाइना? तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है कि चाइना क्वाड को किस तरह से देखता है. तो चाइना देखती है क्वाड को एशियन वर्जन ऑफ द नाटो. वी ऑल नो दैट इट्स अ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन led by the US, and the statement of Chinese foreign minister is quite important in order to understand what Chinese think of the Quad. So we can see on the screen what was the statement of the China. They said that we hope that relevant countries will keep in mind common interest of the regional countries and uphold the principle and do things for the regional peace, stability, prosperity rather than the opposite. So this was official version of the China. It seems that China is quite घबराए हुए से लग रहे हैं और थोड़े से परेशान से भी लग रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस क्वाड ग्रुपिंग के बोनहोमी से. नाउ चलिए अब आते हैं असली मुद्दे पे. क्वाड का वर्जन क्या होना चाहिए? देयर इज अगेन डिबेट अमॉन्ग द एक्सपर्ट. इट शुड बी मिलिट्री अलायंस और इकोनॉमिक अलायंस. अगेन यदि मिलिट्री होती तो मिलिट्री कोरिलेशन होना चाहिए चाइना के ऊपर या इकोनॉमिक कोरिलेशन. सो वी विल सी वन बाय वन. नाउ first option is if quad is a military coalition kind of thing. So we'll see कि कहाँ पे चाइना और कहाँ पे क्वाड स्टैंड करती है. तो बेसिकली जब मिलिट्री पर्सनल्स की बात करते हैं तो देयर आर 3.36 मिलियंस ऑफ द मिलिट्री पर्सन, एक्टिव मिलिट्री पर्सन इन द चाइना. एंड जब क्वाड को कंबाइन करते हैं इट्स लाइक डबल टू द चाइना, दैट इज 7.78 मिलियन. सो रफ फिगर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की गई हैं, बट इससे सीधा पता चलता है कि द क्वाड का परला इज क्वाइट भारी विथ रिस्पेक्ट टू विज चाइनीज मिलिट्री प्रेजेंस इन द रीजन. Again, is military kind of thing is feasible? I don't think so. Now coming to the important aspect, can we put a economic coalition on the China due to the synergy between the Quad countries? We'll see कि how चारों countries का economic relation है चाइना के साथ one by one. First, latest data के according that is available in the public domain, China was the largest US goods trading partner. Again, China was third largest US export market and largest source of the US import. But despite of all the things, there is a kind of competition between the USA and the China that is known as Thorales trap. The spelling I think यहाँ पे कुछ mistakes है, मैं comment section में वहाँ पर डाल दूँगा इसका correct spelling. But in international scenario, Thorales trap is known as a tussle between status quo parties and emerging power. We all know that PRC, that is Republic of China, is an emerging power in changed world order, new world order. और जो US है इसका हेजोमनी अब धीरे धीरे करके कम हो रहा है. तो there is ongoing struggle between the China and the USA since 2014-15 के बाद से ये काफ़ी intense हो गई है. Now चलिए ठीक है. Second party to the Quad is Japan. We'll see how Japan is doing things with the China. So China is third largest source of the foreign investment for the Japanese. Very important.
China is third largest trading partner of the Japan. Trade has increased from the mere 1 billion to tune of 317 billion over the past 45 years between China and the Japan. So huge. So quite huge amount. And China is Japan's largest export market and trading partner, and it represents more than 20% of the Japan's total trade. So we can see there is quite a strong economic relation between Japan and the China, but the military on the military और strategic front उनमें आपस में काफ़ी tussles हो रहे हैं. We will see कि क्या क्या हो रहा है. So basically Japan is entirely or at least dependent upon the Japan. एक छोटी सी चाइना छोटी सी स्टोरी है कि रिसेंटली कुछ साल पहले 1-2 साल पहले चाइना ने कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स के जो देने से मना कर दिया था जापान को. लास्ट ईयर की बात है, और ड्यू टू विच वी ऑल नो दैट जापान वर्क्स अपॉन कंपनीज लाइक सोनी एंड ऑल. तो ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम दीज कंपनीज जापान के गवर्नमेंट को एक नेगोशिएशन डील करना पड़ा था विद द चाइना इन ऑर्डर टू जस्ट secure the supply, uninterrupted supply of the rare earth material from the China to the Japan. And very interesting, मैं एक बार डिस्कस भी करूँगा what is rare earth material. Now coming to the economic relation between China and the Australia. So as per data available in the public domain, trade volume between China and Australia was about 158 billion, while Australia's trade surplus was around of the 50 billion. Australia also export to China were almost of the 130 billion, according 33% of the Australia's total exports. And China remains Australia's largest trading partner, largest export destination, and the largest source of the imports. Quite important. But recently, Australia was also badly affected due to the Chinese muscle flexing. वहाँ पे क्या हुआ था? As we can see, ऑस्ट्रेलिया का डिपेंडेंसी इज़ क्वाइट हाई ऑन द चाइना. तो चाइना वालों ने क्या किया था, डेयरी प्रोडक्ट देना बंद कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को, और भी कुछ चीज़ें थी जैसे रेयर अर्थ मटेरियल एंड ऑल देना बंद कर दिए थे ऑस्ट्रेलिया को, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट कैम इनटू द नीज एंड दे हैव टू अगेन साइन ए डील विद द चाइना दैट वाज मोर फेवरेबल टू द चाइना. सो हम देख सकते हैं कि कैसे चाइना अपने इकोनॉमिक माइट का यूज़ करती है स्ट्रेटेजिक पर्पज के लिए और फेवरेबल डील स्ट्राइक करने के लिए. These are some examples. Now coming to the last party to it and very important, that is we people Indians. So we'll see कि इंडिया के साथ चाइना के क्या रिलेशंस हैं. तो अगेन चाइना वाज इंडियाज सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019. जहाँ तक चीज़ें जब तक ठीक थी वहाँ पर हमारा सेकेंड लार्जिंग पार्टनर कौन था, चाइना. एंड वाज इमर्ज एज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द फर्स्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021. जहाँ तक चीज़ें ठीक थी अगेन पोस्ट प्री कोविड एरा तक हमारा वो सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर होने वाला था. बट बीच में क्या हो गया, गलवान हो गया. कहाँ पे हुआ था, वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द LAC, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. और उसके बाद हमारे और चाइना के बीच के इकोनॉमिक और अदरवाइज दूसरे रिलेशन कुछ अच्छे नहीं रह रहे हैं. और हमारा चाइना के साथ ऑलमोस्ट 90 बिलियन का ट्रेड है, बट इट इज़ लार्जली कॉलोनियल इन नेचर. कॉलोनियल इन नेचर, व्हाट व्हेन वी सी व्हाट इज़ कॉलोनियल इन नेचर मीन्स, इट मीन्स हम उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, वो हमें फिनिश्ड गुड प्रोवाइड करते हैं. इट मीन्स हम सस्ते में सामान को बेचते हैं, वही सामान हमें वो प्रोसेस करके महंगे में बेच देते हैं. सो इट्स कॉलोनियल काइंड ऑफ नेचर ऑफ द ट्रेड. ऑल्सो the bilateral trade relation between India and China declined by only 15% compared to the 32% decline overall trade of the 2021. These are some data बहुत important हैं, आप कोट कर सकते हैं, कभी कभी वो काम आ जाती हैं. Again, China is quite an important source of the supply of the API, and APIs we all know that active pharmaceutical ingredient. और Chinese API के बेसिस पे हम राइट करते हैं किस चीज़ को. हमारी फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है. वी आर नोन एज द वर्ल्ड फार्मेसी. सो बेसिकली यदि वो हम वर्ल्ड फार्मेसी हैं तो इसका मतलब यही है कि चाइना हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, तभी हम दवाइयाँ बना पाते हैं. ऑल्सो FDI काफ़ी अच्छी खासी आती थी हमारे यहाँ चाइना के से, लाइक पेटीएम एंड अदर कंपनीज आर देयर, एडुटेक कंपनीज आर देयर, जहाँ से चाइना से FDI रूट होके आती है. सो वी कैन सी दैट हमारा भी काफ़ी अच्छा डिपेंडेंसी था चाइना के ऊपर. बट गलवान के बाद अब तो और कोविड के बाद सिचुएशन काफ़ी बदल गई है. चलिए ये तो चीज़ें थी. विल सी व्हाट आर द इश्यूज एंड चैलेंजेस विद इन द क्वाड. तो हमने देख लिया कि क्वाड क्या है, क्वाड की जेनेसिस क्या है और क्वाड क्यों आया.
क्वाड के मोटिव्स क्या हैं और क्वाड के डिफरेंट कंट्रीज़ के रिलेशन क्या हैं चाइना के साथ, हम अब देखेंगे क्वाड में ही विद इन द क्वाड क्या क्या इशूज़ हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इशू इज़ द ट्रस्ट वर्दी ऑफ द क्वाड इज ऑफ द यूएसए। यूएसए कभी भी एक ट्रस्ट वर्दी पार्टनर नहीं माना जाता। द हिस्ट्री टीचर्स अस लॉट, दैट्स व्हाई वी एक्चुअली रीड हिस्ट्री, और इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं ताकि हमें पता चलता है कि पास्ट में किसी का बिहेवियर कैसा था तो हम फ्यूचर में कैसे कोर्स करेक्शन कर सकते हैं। सो यूएस इज़ कंसिडर्ड क्वाइट ए पलटूराम टाइप का पार्टनर, एंड अभी तक यूएस ने कभी हमें अच्छे से हेल्प नहीं किया। इवन ड्यूरिंग द 1971 क्राइसिस वी नो दैट दे मूव देयर फ्लीट टुवर्ड्स द इंडिया। डोकलाम क्राइसिस के टाइम में भी यूएस ने कोई खास सपोर्ट नहीं किया, ऑल्दो वी आर द स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ द यूएसए, बट उन्होंने वो ठीक ठाक ही रहे थे, बस न्यूट्रल रहे थे। एंड बाइडेन गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो अगेन नॉट कंसिडर्ड टू मच फ्रेंडली विद द इंडिया। हम देख सकते हैं कि उन्होंने जैसे ही वो किया था, अपना ओथ लिया था, उस टाइम उन्होंने इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक बोल दिया था। इंडो पैसिफिक को एशिया पैसिफिक बोलना ऐसे तो बहुत इजी लग रहा है, बट इस शोज़ की इंडिया का क्या इंपॉर्टेंट है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एशिया पैसिफिक को इंडो पैसिफिक बोल दिया था। इट मीन्स कि इंडिया वॉज सेंटर ऑफ ऑल दिस हेल्म, बट नाउ इट वॉज टर्न बैक टू द एशिया पैसिफिक। बट लेटर ऑन काफ़ी प्रेशर पड़ा बाइडेन गवर्नमेंट के ऊपर कि आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इंडिया इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर द यूएस इन द इंडिया इन ऑर्डर टू कंटेन चाइना। सो फिर से बाइडेन गवर्नमेंट ने उसको इंडो पैसिफिक ही कर दिया। अगेन यूएस का स्टैंस ऑन द ह्यूमन राइट वायलेशन एंड माइनॉरिटी इश्यूज विद द इंडिया इज़ क्वाइट डूबियस। अभी हमने देखा था कि फ्रीडम हाउस इंडेक्स रिपोर्ट आ रही थी, इसमें इंडिया की रैंकिंग काफ़ी लो मानी गई थी, उसके कारण काफ़ी इश्यूज भी हो गए थे इंडिया में। एंड सेम गोज विद द जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। जापान और ऑस्ट्रेलिया में भी अब ओरिजिनल्स के राइट्स के ऊपर काफ़ी इश्यूज होते हैं, और यूएसए का जापान एंड ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इन इश्यूज़ पे काफ़ी कन्फ्लिक्ट है। वो कहते हैं कि आप उनको अपने माइनॉरिटीज़ को अच्छे से प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं। यूएस हमेशा कुछ ना कुछ इस टाइप का करते थे इन ऑर्डर टू गिव द डिप्लोमेटिक प्रेशर्स अपॉन द अदर कंट्रीज, स्पेशली अपॉन द पार्टनर्स। अपने दुश्मनों को तो कुछ कर नहीं पाते, पार्टनर्स को प्रेशराइज किया करते हैं। कैसे करते हैं हम देखते हैं आगे। अगेन US talks about freedom of navigation into the international water, but it is not a signature of UNCLOS. UNCLOS क्या है? यूनाइटेड नेशंस का एक लॉ है, इंटरनेशनल लॉज है जो इंटरनेशनल सी वाटर्स में नेविगेशन को डील करती है, बट US हैवंट साइन इट। उन्होंने आज तक साइन नहीं किया है। सो वेरी फनी एंड वेरी आयरनी इज ऑल्सो देयर। और वो बात करते हैं किसी की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात करते हैं, और इसी के क्रम में इन्होंने बेसिकली इंडिया के टेरिटोरियल वाटर का इंकर्जन किया था। दे हैव इंटर्ड इनटू द एटलीस्ट 133 किलोमीटर्स आई गेस ऑफ द इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक यूएस की वॉरशिप है यूएसएस जॉन पॉल। रिसेंटली उन्होंने इंडियन नेवी को बिना इन्फॉर्म किए हुए लक्षद्वीप वाले इलाके में एक्चुअली इंक्रोचमेंट कर दिया था, और उन्होंने ओपनली इसको डिस्प्ले भी किया दैट वी हैव इनक्रोच अपॉन the exclusive economic zone of Indian government by asserting international kind of एक कहते हैं कि नेविगेशन के लिए हम लोगों को किया, and it is considered it was that it drew a sharp reaction from the Indian government as well कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगेन यूएसए दादा है अभी तो वो कुछ भी कर सकता है, और एटलीस्ट अपने पार्टनर्स को तो काफ़ी परेशान करता है। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हमने देखा, इवन कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में यूएस का काफ़ी फ्लिप फ्लॉप रहा था। इनिशियली दे डोंट वांट टू गिव द वैक्सीन का रॉ मटेरियल, बट ड्यू टू प्रेशर फ्रॉम द अदर कंट्रीज उन्होंने इंडिया को दे दिया। सो वी कैन सी दैट यूएस द ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द यूएस इज ऑलवेज क्वेश्चनेबल। नाउ हर एक कंट्री का कुछ ना कुछ पर्सनल इंटरेस्ट, इट मीन्स इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्वॉल्व है किसके साथ, चाइना के साथ। इसलिए वो चाहते हैं कि चाइना ना उसके साथ ना उनकी दुश्मनी अच्छी होती है ना उनकी दोस्ती भली होती है, तो वो कहते हैं चलो यार बस एक टाइप का यदि प्रेशर क्रिएट कर पाएँ तो दैट इज़ गुड, अदरवाइज कुछ खास रिएक्शन नहीं होने वाला। ऑल्सो चाइना इज़ हब ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन अंटिल हमारे पास कोई अल्टरनेट होते हैं, इसमें इट मीन्स वर्ल्ड के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। वी कांट अफोर्ड टू डिसरप्ट दैट ग्लोबल चेन। हमें फिर काफ़ी इश्यूज हो जाएंगे, हमारे पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा या हमारे पास फिनिश्ड गुड ही नहीं होगा जिससे हम इंस्टॉलेशन कर पाएँ। तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट टू शिफ्ट दिस ग्लोबल वैल्यू चेन फ्रॉम द चाइना टू सम अदर कंट्रीज लाइक इंडिया। अगेन देयर आर इश्यूज ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल। चाइना कंट्रोल्स अबाउट 97 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोडक्शन ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते, ये एक्चुअली रेयर नहीं होते,
बहुत ही अबंडेंट होते हैं नेचर में, बट इनका एक्सट्रैक्शन काफ़ी डिफिकल्ट होता है, दैट्स वाई इनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। और हमारे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस जितने भी, जैसे मैं इस लैपटॉप से आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन्स हो गए, कार हो गए, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जिसमें सब में रेयर अर्थ मटेरियल कहीं ना कहीं लगता है, उसका 97% चंक जो आता है वो चाइना से आता है, ठीक है ना। क्वाइट इंपॉर्टेंट, यदि उन्होंने रेयर अर्थ मटेरियल को देना बंद कर दिया वर्ल्ड को, तो वर्ल्ड नीड्स पे आ जाएंगी, ठीक है ना। कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग, ये सब और कार कंपनीज लाइक हुंडई, होंडा, मर्सिडीज, सब नीड्स पे आ जाएंगी। तो इसलिए चाइना को हम ऐसे आउटराइटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। चलिए, अगेन देर आर इशूज ऑफ सम साउथ चाइना डिस्प्यूट, वी कैन डिस्कस इट लेटर ऑन। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बट इतना आप जान लीजिए कि साउथ चाइना सी में काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं। और हम देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे आइलैंड हैं जिसमें चाइना आके आर्टिफिशियल आइलैंड बनाती है और उसको कहती है कि हमारा ये अब उसके बाद से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया। देयर आर फ्यू आइलैंड, जैसे स्पार्टली हो गया, पार्सल आइलैंड हो गया, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज में जिसका चाइना का और जापान और साउथ ईस्ट एशियन आसियान नेशन का डिस्प्यूट चल रहा है। वी विल डिस्कस सम एट डे। Now, what are issues and challenges within India itself? So, India shares a land boundary with the China, and we are only country of the Quad to share a land boundary with the China. We have seen that कैसे अभी डोकलाम का क्राइसिस हुआ पिछले साल, अभी यहाँ पे गलवान क्राइसिस हुआ जहाँ पे हमारे काफ़ी लोग 19-20 लोग शहीद हो गए थे। ऑल्दो वी हैव ऑल्सो इन्फ्लेक्टेड ए लार्ज काइंड ऑफ क्या कहते हैं, एक हम लोगों ने भी काफ़ी रेसिस्ट किया था उसके, बट स्टिल सिंस वी शेयर ए लैंड बाउंड्री विद चाइना, दैट इज़ ऑल्सो not a settled land boundary, so there are chances of brawl, there are chances of war, there are chances of large scale incursion between China and India and China. So again we are most vulnerable partner of the Quad. Again, if we are aligning with a organization like Quad, so it can compromise our non-aligned policy. हालांकि it is defunct basically, but still it's लिगेसी ऑफ द पास। सो और हमें कुछ बेनिफिट भी मिलता है, हम कहीं किसी के साथ नहीं, बाइपोलर वर्ल्ड में हम किसी के साथ नहीं थे, मल्टीपोलर वर्ल्ड भी है तो हम सबके साथ हैं और सबके साथ नहीं भी हैं। सो इट्स वेरी और इससे क्वाड से ये भी कहा जा रहा है कि इट विल कंप्रोमाइज आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो क्वाड के बेसिस पे बना करेंगे, लाइक नेटो, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी ड्यू टू द क्वाड, यदि एक सॉलिडिफिकेशन हो जाता है। अगेन the fate of BRICS, Shanghai Cooperation Organization, Russia, India, China cooperation will fall into the question because of Quad, because China is a common enemy and Russia और USA के बीच में भी बहुत अच्छे रिलेशन नहीं हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे हमारा काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है, वहाँ उनका फेट भी काफ़ी क्वेश्चनेबल हो जाएगा। और इसका सिंपल सा एग्जांपल ऐसे मिलता है कि क्वाड का स्टेटमेंट वाज द शॉर्टेस्ट स्पीच बाय द मोदी जी ऑफ हिज कैरियर, एंड मोदी जी और छोटा स्पीच दे रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ होता है। मेरे इज़ नोन टू अच्छा, उनको काफ़ी अच्छा लगता है बोलना, भाषण देना अच्छा लगता है, और 2-4 लाइन का बस उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। सो माना जा रहा है कि इंडिया इज साउंडिंग क्वाइट कॉशियस ऑन द क्वाड until unless things are clear, until unless fourth is clear, until unless the air is clear, India is not going to take a solid stand on the quad grouping. Now we are into the catch 2022 selection. It means डायनेमिक सिचुएशन इंडिया के पास है। सो कैसे क्या करना है नहीं करना है, अभी इंडिया के पास काफ़ी इफ एंड बट्स हैं। नो, सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर इट? सो फर्स्ट, फ्यू पीपल आर ऑफ ओपिनियन कि वी शुड मूव फ्रॉम क्वाड टू क्वाड प्लस, एंड क्वाड प्लस में कौन कौन सी आ सकती हैं? तो देयर आर कंट्रीज लाइक फ्रांस, UK, South Korea and ASEAN. We can cater in all these countries to make a more robust, more dynamic and more reliable partner grouping, and इसको हम लोग कर सकते हैं क्वाड प्लस। चलिए, ये एक वन ऑफ द सॉल्यूशन है। उसमें हमारा US के ऊपर जो एक डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, और अदर कंट्रीज़ भी जैसे ऑस्ट्रेलिया भी कभी फ्लिप फ्लॉप करती है, उसके पीछे हमारे डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। नाउ सेकेंड चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट इज सिनर्जी। Synergy means we need to cater technology of the US, surplus capital of the Japan. We know that Japan is quite a rich country, then having a lot of surplus capital, and Australia's expertise in logistics. We all know that Australia is known for the logistic hub of the world, so we can also cater the Australia's experience. And last but not the least, we can cater, the Quad can cater the India's robust production line
टू कंटेन द हेजिमनी ऑफ द चाइना इन द ग्लोबल सप्लाई चेन। सो हमने कहा था कि इंडिया वर्ल्ड की पूरी डिपेंडेंसी अपॉन द चाइना ड्यू टू देयर हब ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन। इन केस इंडिया इज ट्राइंग टू रिप्लेस और इंडिया रिप्लेस कर देती है चाइना को इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई चेन थिंग, तो पूरी वर्ल्ड की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी चाइना को। जिस टाइम डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, म्यूचुअल इंटरेस्ट कम हो जाएगा, उस टाइम हम चाइना को अच्छे से दबा सकते हैं। Also, their suggestion that Quad need to move from mere rhetoric to result and reality. It means बस बात करने से कुछ नहीं होगा, वर्बोज होने से कुछ नहीं होगा, आपको रिजल्ट्स लाने होंगे और रियलिटी पे भी वर्क करना पड़ेगा। रियलिटी हमने देखा कि कैसे सब कंट्रीज़ का डिपेंडेंसी है अपॉन द क्वाड, और रिजल्ट्स भी लाने होंगे, हमें कुछ ना कुछ सॉलिड ग्राउंड पे करना होगा। नाउ what are the backups for quad grouping? There can be quad without USA. Yes, there can be. जैसे हमने देखा US यदि ज़्यादा reliable नहीं है तो we can cater other countries like France, USA, South Korea and ASEAN. And otherwise we can also pursue Chanakya's ideology on IR. हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि चाणक्य का पॉलिसी ऑन IR क्या था। ये था कि दुश्मन का नेबर हमेशा अपना आपका कंपिटिटर होता है और नेबर का नेबर हमेशा आपका फ्रेंड होता है। तो नेबर के नेबर को कैटर कीजिए। कौन है नेबर के नेबर? जापान, साउथ कोरिया, ASEAN. We have all the countries that are affected by China's hegemony in the Asia Pacific region or in the South China Sea. So we can cater in those countries in order to contain the China और इस टाइप से हम उनको डील कर सकते हैं। सो इट वॉज द एंटायर डिस्कशन ऑन द क्वाड। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कहीं पे कुछ गलती हो गई हो, लाइक कीजिए और अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।